Sangye Chudam Tsochi Chonama Chancho Bardu Dami Gyasuchi Tagi Jinsa Jibe Sonamgi Dola Benche Sangye Sangye Chudam Tsochi Chonama Chancho Bardu Dami Gyasuchi Tagi Jinsa Jibe Sonamgi Dola Benche Sangye Sangye Chudam Chonama Chancho Bardu Dami Gyasuchi Tagi Jinsa Jibe Sonamgi Dola Benche Sangye Samje Tamje Dewa Deve Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Dam Duman Je Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Mebe Dewa Tampara Dam Nidavara Jurje Samje Tamje Nene Chadam Nedam Jave Kamyam Chambala Nebra Jurje Samje Tamje Dewa Deve Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Duman Je Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Mebe Dewa Tampara Nidavara Jurje Samje Tamje Nene Chadam Nedam Jave Kamyam Chambala Nebra Jurje Samje Tamje Dewa Deve Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Duman Je Jodam Tampara Jurje Samje Tamje Duman Mebe Dewa Tampara Nidavara Jurje Samje Tamje Nene Chadam Nedam Jave Kamyam Chambala Nebra Jurje Togye Tuje Shakye Rizotong Shenje Meto Tuje Bonjongba Sege Lungo Tabro Jibe Go Shakye Jobe Shabla Cha-cha-lo Gange Tambra Janjo Tujin Sonam Bisha Zoni Zenze Jen Tedra Jeba Janjen Doba Kanjara Jeba Dagi Tobram Ze Lana Tonze Dulve Duljen Lale Bamne Lanjen Darje Jen Rine Zine Lamo Jendro Lumzo Jabra Zela Chazalo Tawa Chozo Shaje Sebo Tashi Lumbe Kado Tambe Ze Sandan Jajen Dido Sanjo Sanjo Rezo Nyenze Chanzalo Shono Todeme Senge Anga Manga Daru Jizarden Chilo Jepa Chanan Sajen Tenga Mebra Zela Chazalo Jiben Chedan Tombra Java Kana Mado Bonje Zumbaye Kordan Donze Talage Jose Jamran Zela Chanzalo Korve Java Nimba Mizene Momen Zumba Chazalo
ze kam ne so sa chen de la gong pa tu ne kam ne jing ten de na cho che te te ke ba cho la cha sa tong bo ga den la ye yu ne chal be ga do yung ge lum so cho lum de ni sa do tu ba chum de la ye la la cha sa she ye kang do ma ma ji ji sha je zhong do shou ne ro je je si ne ne so kap do je si zong zu me ko la cha sa dong je go je zhou we zu den chou den nam da zhong do wu zha ne ren sa ne dam do ka do tim ne zhang zhang zha la cha sa chal be kap do lang chen yang ba chen do te o zhang se mong ga da ro to ba ngon san chen be yi she par la cha sa wa ra na se che che ko ya ze te cha do chen zhe chen do jo zhong do gong ba nian nian tu ne nam ka da la cha sa te tra ten be da bo chen den je be zu la do zong do ba ye we do wa kun je cha ba ye she ni ge zang da zong ba ra shu de shi she ba je go chen da dang ko dang ko je zang da ye zang cha zang ba chen da ten da ko na da so ji ru ra shu che la do jen so wa ta be ta so gan do ne be sa ja ne gang wu pon ta so shi wa che dan ta she pe lu ra ze do so di kwa ji a me ja ke wa pon zum so ba ja rang ge sem ne yo so tene sang je ten ba ye karma ra ve mar ne chuma silva chubro da milam lo da tin da tuje che nam de dar da lama tomba chung den de de shin she da chung ba yang da bra zo be sang je ba ge sha ja tu wa la cha za lo cha do ge su che na do lama tomba chung den de de shin she da yang da bra zo be sang je pa ge wa sha ja tu wa la cha za cho do ge su je jin je la do lama tomba chung den de shin she wa da chung ba yang da bra zo be sang je sha ja tu wa la cha za lo cho do ge su jin je la do 두제 탐제 미다와 삽제 탐제 동아와 최탐제 동신 다메바 냥엘레데와 시와 딕바 지양 미자지 개와 분숨 사바라 랑기 셈니 용수들 베네 상기 템바이 카르마 라브리 마르메 주마 실바 추브르다 밀람 록단 틴다 뒤제 취남 데다르다 취남 탐제 줄레 대주 대신 식배송 줄레 고바 강임 개정 전도 대개송 나모 부다야 나모 ධර්마야 나모 상가야 Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Omen Jije Vinje Bodhondo, Dusum Sanje Kunje Govone, Ransen Chokum Sonda Juro. Sawe lame shabla ki chan sa yungden sanje kundang jamna yang katen sanje kunle lok beje sawe lame shabla sowan nelo gyula tobra jinje lo sanje kundu sawe lama la kusum gowa chimbe sowan
도메네 로로단 세단 두바 넘브라 진지 로 남카단 님베 심젠 담지 감송 걸어봐 둥얼지 점설레 달대 넘바 탐지 침바 조베 산지 지고 본라 고브라 대제도 담배제 도섬 고섬제 돈에 땐라 베브라 자오 냠바이 군론자 저주도 생계방문도 진 담배제 sembrā shio tēlā yāng kāngshī sembē chū nē dācā tōmbā kātīn tūkjē chēn dēshīn shikwa dā chōmbā yāng dāparā tsōbē sāngjē chōmdēn dē dēnī kī sūngbē dhamma padā ham siksu chēpā shē chēpā kī dhamma kī dūcī dēnī shibē kāyēn bē lōmā chē namjī sēmmā yāng parā jētē tsēchik tū sembrā shio सेपा चोंगा कहते हैं सेपा चोंगा क्या होता है सेपा चोंगा हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है किसका दुश्मन है शराब पीने का दुश्मन है चिकन खाने का दुश्मन है गाली गलौज करने का दुश्मन है धक्का मुक्की करने का दुश्मन है नहीं सेपा चोंगा जो है संगे चुमदिन देश के जप्पा से जुड़ा हुआ एक ऐसा दिन है संगे चुमदिन देश के जप्पा से जुड़ा हुआ ऐसा एक पवित्र दिन है शुभ दिन है वो दिन जिस दिन में आप थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है समझ गया ना और उसी तरह दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो दिन वहां एक छोटा पाप करिए तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है तो पुण्य कमाना है ना शुभ दिनों में क्योंकि जैसे लोपन गुरु रिम्पोछे जी का जितना भी जत्पा छिलने जो है सेपचू में बिताया और सेपचू में बीत गया सेपचू को दशमी को गुरु रिम्पोछे जी का लीला सब दशमी के दिन घटना घटी उसी तरह संगे चुमदिन देश की जितना भी घटना है वो जो है सेपचोंगा में घटा सेपचोंगा जो है किसका दुश्मन है संगे चुमदिन देश का दुश्मन है कहीं कहीं लोथो में संगे होपा में का दुश्मन है बोलते कहते हैं होपा में का हो संगे शक्यत हुआ कहो कोई दूसरी चीज नहीं है संगे तो संगे से है संगे से एक ही होते हैं समझ गया ना तेनी सेपचोंगा है यार मैंने कहा कि हर एक सेपचोंगा जो पूर्णिमा होता है संगे चुमदिन देश तथागत सम्यक संबुद्ध के कोई जीवन लीला से घटना घटी होती है तो आज का दिन भी जो है आज क्या है मांग पूर्णिमा बोलते हैं हम लोग को मांग चोंगा गोलसंग बोलते हैं हम लोग चोंगा गोल यहाँ संगा गोलसंग है ना मतलब सा मतलब 10 ना मतलब 5 और 15 हो गया ना 15वां है मांग चोंग गोलसंग बोलते हैं हम लोग जंगी में मांग है फानंग नहीं अभी मांग चोंग गोलसंग मांग चोंग गोलसंग वो है कि क्या घटना घटा बहुत घटना घटी है संगे चुमदिन देश के काल में दोरजे दिन से आगे जाएंगे तो पटना पहुंचते हैं पटना से 32 किलोमीटर दूर एक जगह है उसको वैशाली कहते हैं छसमी यंगपाचन कहते हैं उस यंगपाचन के जगह में संगे चुमदिन देश का बहुत ज्यादा लीला घटना घटी है लीला घटा है वहां पर सबसे पहले तो वहां एक बहुत सुंदर एक औरत थी उस औरत का नाम था आमरपाली आपने सुना होगा आमरपाली एक ऐसी गणिका थी कि बहुत सुंदर थे वहां के जो लिच्छवी जो जात के जो राजा रहते थे वहां प्रजागण रहते थे तो उस औरत से बहुत लगाव रखता था तो वो थोड़ी चरित्र में कुछ दूसरे ढंग की थी जैसे आजकल हमारे भाषा में कहा जाए तो अभिनेत्री लोग होते हैं उस ढंग के मतलब सबको रोमांचित करने वाली ऐसी होती थी तथागत बुद्ध का दर्शन हो जाता है उस औरत का तथागत बुद्ध का दर्शन हो जाता तो पूर्व जन्म के संस्कार से उसका जो है पुल्लिक रोमांच हो उठता है लुई की बापू तंग मिन में छिमा ढेर बोलता है शरीर का पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है आंखों से आंसू निकल आता है अमरपाली का तो समझती है कि तथागत बुद्ध यहाँ है इनका यहाँ जन्म हुआ है इन्हें मैं अपने वहां बुला करके भोजन दान करूंगा भिक्षुओं के साथ ऐसा सोचा अमरपाली ने उसी दिन वहां लिच्छवी के जो राजा जी थे और राजा जी थे सिंह सेनापति बोल के कहते थे उन्होंने भी सोचा कि तथागत का वैशाली में यंगपाचन में आगमन हुआ है तो उनको हम बुलाएंगे उससे पहले अमरपाली पहुंच चुकी होती है अमरपाली ने संगेश को सुशी किया कि अब हमारे पास शेला के लिए सोल छोगाला फेप्सो से संगे गेंदुइंग अब्जा नमदू फिर अमरपाली का जो आमंत्रण था स्वीकार किया भगवान ने लेकिन उसके बाद वहां लिच्छवी सेनापति आए जो लिच्छवी के राजा थे वो आए तो वो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरे पहले अमरपाली आ चुकी है अमरपाली के वहां जाना है मैं इसको आपके लिए नहीं दे सकता हूँ फिर उसने सोचा कि अमरपाली के पास जा करके जो है संगेश को मेरे तरफ मोड़ूंगा सोच के ना अमरपाली तुझे मैं जितना भी पैसा दे दूंगा तथागत का जो कल का जो लंच का प्रोग्राम है कल जो शेला का प्रोग्राम है मेरे लिए दे दे तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा वो के राजा कहता है लेकिन अमरपाली का मानने वाले उसके अंदर श्रद्धा अपार है तथागत के प्रति पूर्व जन्म का संस्कार है भक्षक है तो नहीं मानती है फिर तथागत बुद्ध जाते हैं वहां पर भोजन करते हैं दूसरे दिन पूरा वहां एक आम का बगीचा होता था कहते हैं
आम्रपाली क्यों है? क्योंकि आम का बगीचा के बहुत बड़ा मालिक थी वो बहुत सुंदर थी, गणिका कहते थे उन दिनों में। तो संगेश चंदेन देश को जला दिया, मतलब उनको सोल खुशी कर दिया, उनको सब भोजन पर आमंत्रण किया, बड़ा सेवा करके संगेश को सोल देते हैं। सोल धारण करने के बाद जब मुआ मोलम का समय होता तो अपने आम का बगीचा जो होता सब संगेश चंदेन देश को खुशी करता है, मतलब उनको भेंट के रूप में अर्पित कर देते हैं, दान दे देते हैं। फिर तथागत बुद्ध मुस्कुरा करके उस दान को ले लेते हैं। ये जगह है यंगबाचन, वो यंगबाचन के बारे में बोल रहा था। वहाँ ये लिच्छवियों का नगर है, उस लिच्छवी के नाम से दिल्ली से एक रेल भी चलती है, लिच्छवी एक्सप्रेस बोल के। इतिहास को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने लिच्छवी एक्सप्रेस बोल के एक गाड़ी चलती है, मुजफ्फर नगर तक जाती है, वहां पर है ना। तो वहां है, तो वो ये जो यंगबाचन के जगह जो थे, ये एक ऐसा जगह है यंगबाचन के जगह पर उस आम्रपाली ने जिस दिन आम के बगीचा को दान दिया था ना, वो आज का दिन था कहते हैं। मांग से बचूंगा मैं ये कहना चाहता था। फिर वहां पर बहुत बड़ा बिहार हुआ, तो वहां पर परायण सूत्र का पर्यायन का पाठ हुआ। फिर उसके बाद परियत्ति पटिपत्ति पटिवेदन जिसे कहते हैं, छस को सुनो, फिर मन में सोचो, फिर न्यमलन करके शमथा विपස්සना की भावना का एक वहां बहुत बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ था। वो भी आज के दिन शुरू किए थे भगवान बुद्ध जी ने यंगबाचन में, वो आज दिन है। अब इसके बाद एक दूसरा एक कथा आती है। पहले संगे चौमदिन देश ने औरतों को, औरत जो स्त्रियां होती है उनको क्या कहते हैं, भिक्षुणी बनने का आदेश नहीं दिया था। कुंगाओ जी बार बार कहते हैं कि आप क्यों हैं, एक तरफ से तो आप कहते हैं कि सब क्या कहते हैं मानव जाति जो एक होते हैं, दूसरी तरफ से आप फर्क जैसे कर रहे हैं औरत और मर्द में क्यों है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं तुम नहीं जानते हो, औरत और मर्द के जो शरीर की बनावटी है उसमें फर्क होता है। जब तक मैं पूरा पुख्ता करना लूँ तो ये शील का पालन कर सकते कि नहीं कर सकते, तब तक मैं आदेश नहीं सकता है। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबके ऊपर मेरा दया है, करुणा है, ऐसा करके ऐसा। बाद में संगेश को पता लगा कि हाँ औरतों को भी आना चाहिए, गेलोंगमा के दम्बा में आना चाहिए, गेसुलमा रबजुम्मा गेलोंगमा के। सबसे पहले रबजुम्मा का दम्बा कहाँ दिया संगे चुमदिन देश ने? आज के दिन महांग सेपा चौंगा को यंगबा चैन में संगे चुमदिन देश की अपनी मौसी माता जी का तो 7 दिन के बाद देहांत हो जाता है। संगे चुमदिन देश के मायूम जो थे, माया देवी जुठुल लमजे बोलते हैं, उनका 7 दिन के बाद भगवान के जन्म के 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी केतु दंगो बोलते हैं शस्त्र के अंदर, और महाप्रजापति बोलते हैं। तो उन्होंने संगेश का पूरा लालन पालन किया है, अपने माता से भी बढ़कर किया है। उनके बेटा नंद था, नंद का स्टोरी जो पहले मैंने बताया था, जो अपनी पत्नी पर हो करते थे, वहां ले गया, वहां बताया था ना। उनकी माता थी, लेकिन उनके कोख से संगेश का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन संगेश को पूरा पालने वाले, क्योंकि 7 दिन में संगेश का परिनिर्वाण, संगेश की माता जी का परिनिर्वाण हो जाती है, तो संगेश का पूरा जो है लालन पालन जो है उनका तिथे जो है, उनका मौसी जो है उन्होंने पालन किया है। केगुई तांगमो बोलते हैं प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी गेलोंग माँ का सबसे पहले दम्बा लेने वाली संगे चुमदिन देश की मौसी प्रजापति गौतमी, जोमो बनने में सबसे पहले उनकी अपनी मौसी। तो उनकी मौसी के साथ तो 500 औरतें जो है गेलोंग, पहले गेंजन माँ बनते हैं, फिर कुछ दिन के बाद गेसुल माँ बनते हैं, फिर गेलोंग माँ का दम्बा प्राप्त करते हैं। वो गेलोंग माँ का दम्बा कब शुरू हुआ? मांग सेपा चौंगा को शुरू हुआ संगे चुमदिन देश का। आज तक सुना किसी से? तो ये सारी चीजें ऐसी है, बहुत गलत घटना घटता है सेपा चौंगा के दिन। ये तो छोड़ो, एक बार संगे चुमदिन देश 80 साल की उम्र में पहुंच चुके थे। 80 साल उम्र, 81 साल के शुरुआत में संगे चुमदिन देश कुंभाध्यक्ष हो गए, परिनिर्वाण हो गए। तो यंगबाचन में थे, यंगबाचन में पूरा वहां पर पूरा भिक्षुओं को क्या कहते हैं धर्म उपदेश देते हुए परायण कर रहे थे। परायण मतलब जैसे मैं भी परायण कर रहा हूँ ना, शस्त्र के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको परायण कहते हैं। इसके बाद दूसरा चीज होता है, वो होता है पटिपत्ति होता है, उसमें सोचना पड़ता है, मोटा मोटा से ध्यान लगाना पड़ता है। पटी वेदन तो बहुत बड़ी चीज है, आप विपश्यना में पक करके आपका विकार छूटा होता है, सिर्फ आगे जाना होता है, वो पटी वेदन होता है, वो बहुत दूर की बात है। तो वहां परायण करके बैठे थे। उस बीच में जो जिसे हम लोग आखु शिंजे छजल बोलते हैं ना, मरने के बाद कोई शिंजे आता है, यम आते हैं, कुछ द लॉर्ड ऑफ डेथ, कुछ इस तरह का भगवान बुद्ध के सामने आ गए। भगवान बुद्ध को सीधा सीधा तो प्रहार नहीं कर सकता है, वो तो भगवान है, तथागत बुद्ध है, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना है, क्योंकि उनका शरीर और हमारे शरीर में फर्क नहीं है। उनका शरीर भी हार्ड मांस का बना हुआ है, हमारा भी हार्ड मांस का बना हुआ है,
शरीर तो शरीर ही है ना, 4 महाभूतों का संग्रह है, साथ छू मैं लूंग, ये तो शरीर है, बाकी क्या है। वो छोड़ने का समय आ गया तो वो शिंजे आ गए, क्या दीर्घा राजा बोलते हैं हम लोग, दीर्घा राजा बोलते हैं हमारे भाषा में, और यमराज जिसे कहते हैं शिंजे बोलते हैं, वो आ गए तो छक करता है, शिंजे छक करके कहते हैं भगवान बोलते हैं आपने बहुत लीला रचा है, आपने बहुत लोगों का कल्याण किया, अब आपका समय आ गया है, कृपा करके आप आने की कोशिश कीजिए, अब चलिए बोल के, अब मतलब शरीर छोड़ दो बोल के, ऐसा शिंजे चुचल आया बोलते हैं यंगबाचन में जब थे तो यंगबा आज के दिन, आज के मांग से चुके दिन। फिर संगेश को बोला, संगेश ने उनको फटकारा, तुम कौन होते हो मेरे सामने, संगेश तो संगेश है ना, लीला दिखा रहे ना, तुम कौन है तो मेरे को ऐसा करके कैसे बता सकते हो, मैं कल्पों तक हजारों करोड़ों साल तक भी जी सकता हूँ, क्योंकि मुझ में विकार नहीं है। मुझे वो तो ठीक है भगवान, लेकिन आपका शरीर तो 4 महाभूतों का बना है, आपको छोड़ने तो पड़े, ऐसे ही दिखा रहे थे ना। फिर मैं बोला आज मैं नहीं जाने वाला, मैं तुझे बताता हूँ 3 महीने तक मैं कभी नहीं जाने वाला, 3 महीना और बचा हुआ है मेरा, 3 महीने तक अभी मैं नहीं आ सकता तेरे साथ, ठीक है भगवान बोल के छक करके वहीं अंतर्धान हो जाता है यमराज। लेकिन उसके बाद 3 महीना बैठूंगा बोल के वहां के गेलोंग गेंजिन जितना भी उनके शिष्य थे ना, उनको आदेश देते हैं, उनको प्रवचन देते हैं, आज से 3 महीना के बाद सागा दावा के छेपा चोंगा में मेरा परिनिर्वाण होगा के करके आज के महान छेपा चोंगा को संगे चुमदिन देश ने लुंटेन लगाया था, भविष्यवाणी किया था। आज से 3 आज छेपा चोंगा है ना, आज के बाद छेपा चोंगा ये क्या है, ये मांग है, माघ का है ना, माघ छेपा चोंगा फागुन चैत्र बैशाख, ठीक 3 महीना हो जाता है बैशाख पूर्णिमा को, समझ गया ना। फिर बैशाख पूर्णिमा के दिन संगे चुमदिन देश क्या कहते हैं अपने शरीर को छोते हैं, वो दिन भी आज है, ऐसा ऐसा है। फिर दूसरा दिन क्या है, अपने जीवन काल में संगे चुमदिन देश का छम क्या होता था, हम लोग छम बोलते हैं ना, लामा लोग लसुम छुसुम जाते हैं, मंडो लगाते हैं, लसुम जाते ससुम करते हैं, वो छम होता क्या है, छम उस समय संगे चुमदिन देश खुद तो पूरा संगेस हो चुके हैं, तथागत हो चुके हैं तथागत इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्थ देवा मनुष्यानाम बुद्धो भगवाती के प्रार्थना करते हैं। हमारे छत के अंदर पंबा चुमदेन दे दिशी शिपा डाचंबा यांगोबरा दोपे संजेला छक्थालो संगे शौका थुबाला छक्थालो, पाली भाषा में पहले जैसे का वही है, अर्थ एक ही है। तो ऐसा हम लोग संगे चुमदिन देश का हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब संगे चुमदिन देश क्या कहते हैं, संगे चुमदिन देश संगेश का अर्थ क्या होता है, ये होता है ना, संगे चुमदिन देश जब सम करते थे तो महीना में जब बारिश होता है ना, बारिश बहुत बरसात के महीने में, उसको वर्षावास कहते थे, वर्षावास। 3 महीना यरने रियो हमी मदी संगे चुमदिन दे हमी मके कहीं भी नहीं जाते थे। छरवा की दुईला तवा सुम की रिंगला संगे चुमदिन दे सचा चिकला झुक चिने कोम गोम जमले चिने झुकचा खवायम फिर बीमारी दिला यरने सिगरे गेलोंग गेंदिन, ये लोग जो रबजुंग होते हैं, गेलोंग होते हैं, गेलोंगमा होते हैं, क्या कहते हैं, जो डावा लोग होते हैं, खेम्बो लोग होते हैं, वो लोग वैसा वो करते थे, यरने करते थे। तो अपने जीवन के काल में संगे चुमदिन देश 2 बार यरने यंगबाचन वैशाली में किए थे, एक 5वां और एक 46वां अपने जीवन काल में, 5वां और 46वां जो 3 महीने का सम होता है ना, ये यंगबाचन में किए थे। वो भी इसी दिन में घटता था, पता नहीं उनका सौभाग्य होता ना, उनका एक होता है ना घटना होता है। 5वां भी कर रहे थे तो मांग से बचौंगा ही था, और 46वां कर रहे थे तो भी तो मांग से बचौंगा ही था। मांग से बचौंगा के दिन बहुत इसी तरह घटना घटता है। तो आप लोगों को मैं कहना यह चाहता था कि संगे चुमदिन देश का जितना भी लीला है ना, सेपा चोंगा को घटाव है ये करने के लिए, इसीलिए सेपा चोंगा जो है बहुत ही हमारे नांबा संजेस्पा के उसमें बहुत ही ताछंको है तुझे है। इस दिन तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन तो कम से कम शरीर से कोई हिंसा कार्य नहीं करना चाहिए, इस दिन तो कम से कम मतलब चुगली नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, मन में लोभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, सेंस के अंदर दर्पा रख करके करुणा निंजे की भावना करके कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। समझ गया ना, ताम पूर्ण करना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान लगाएगा तो फिर तो सोने में सुहागा है। और ध्यान हर कोई लगा नहीं सकता है, क्योंकि आदत ही नहीं है ना, आदत लगाना पड़ता है। ध्यान लगा के, ध्यान क्यों लगाना पड़ता है? ध्यान अगर ढंग से आप लगाओगे, सांस के जरिए मन को पवित्र करोगे, साफ सुथरा करोगे, तो उसके बाद आपको असलियत का पता लगेगा। संगे चुमदिन देश कहते हैं सब अनित्य है,
सांस के द्वारा ही आपको अनित्य पता लग सकता है। अगर आपके अंदर पूरे जन्म का संस्कार हो तो पता ना लगे तो फिर शरीर का परीक्षण करोगे, उससे अनित्य पता लग सकता है। उससे पता ना ले सके तो स्वर्वा क्या है, स्वर्वा को देखोगे तो उससे पता लग सकता है। स्वर्वा से भी नहीं पता लगेगा तो स्वयं को देखोगे, स्वयं कितना चंचल है, कितना चपला है, उससे पता लग सकता है। मितक बोल के क्या है वो भी पता नहीं लग सके तो फिर बाहर दृष्टि को देख करके, पेड़ को देख करके पता लग सकता है। ये पता लगने का ढंग अलग अलग हो सकता है। कैसे पता लग सकता है? आजकल गुंगा है, अब किन्नौर वगैरह में तो सेब के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होगा। पहले तो बहुत पत्ता था, सेब पत्ता नहीं है। क्या मितकवा है ना, बदल गया, मौसम बदल गया तो मितकवा बदल गया। फिर थोड़ी देर बाद, 1 महीने के बाद फिर वहां हरी पत्तियां आएगी, फिर फूल आएगा। देखो यार फिर आ रहा है, ये पहले वाला फूल था नहीं, पहले वाला पत्ता था नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, ये फिर दूसरा आ रहा है। हम भी मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेंगे अपने कर्म के अनुसार। सेब के पेड़ के नीचे अच्छी खाद डालोगे, अच्छा स्प्रे करोगे, अच्छा प्रूनिंग करोगे तो अच्छा होगा ना पेड़। प्रूनिंग ही नहीं किया, खाद ही नहीं दिया तो बाद में हरी पत्ती भी नहीं दिखाया, सूख जाएगा पेड़, है ना। तो उसी तरह अच्छे कर्म करके अच्छे फल आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब मितकवा है। मितकवा जानोगे तो फिर संगेश का छस समझ में आ जाता है। मितकवा नहीं जानेगा तो संगेश का छस कुछ भी पता नहीं लगाता। माने पढ़ेंगे तो गीत की तरह पढ़ोगे, वो एक ही बात है, यमदासी की गाना की तरह ही बन जाता है। यमदासी का गाना नहीं है, आप लोग का स्पीति का कोई गाना होगा, माने मन के अंदर धप्पा नहीं है तो वह समझे धमजे के प्रति निंजे नहीं है तो गाना की तरह है ना, वो आनंद आएगा। गाना गाते समय भी कितना मजा आता है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कम लगाया, बिल्कुल कम हो ही नहीं रहा, क्या चलो यार अच्छी गाना गाओ, नाच लेते हैं कुछ देर के लिए तो मन शुद्ध हो जाता है। चल हाथ हिलाया हो क्या, एक्सरसाइज भी हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है। इस कभी कभी फिर हम लोग भी नाच लेते हैं, है ना। नाचना भी एक संस्कृति है, उससे भी मन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन फिर नाच गा करके कुछ देर तक बहुत, कल तो बहुत अच्छा हो गया जी, बड़ा मजा आ गया, ये है। आज फिर वो नहीं है ना, फिर उतने तक ही रहा ना, है तो आता है, मजा आता है, आनंद है, उतना तक ही। लेकिन उस आनंद को लंबे समय तक रखने के लिए घोम जमलेन करना पड़ता है। घोम जमलेन करके पक गया तो नाचो गाओ सो उठो खाओ पियो सभी जगह घुम हो जाता है। लेकिन वो बहुत दूर की बात है ना, इसको हम लोग को अभ्यास करना पड़ता है, जमलेन करना पड़ता है। छेपा चोंगा का दिन है ना, ऐसी बातें होनी चाहिए नहीं छेपा चोंगा में। अब मैं थोड़ा दंपत के अंदर जाता हूँ, है ना। दंपत में हम लोग कितना था इसमें चैप्टर, 26 था ना, 26 था। 26 में से 7 चला गया, 6 चला गया, आज 7वां है। 7वां ये जो चैप्टर जो ना थोड़ा कठिन है, ये डाचंपा का है, जो पूरा गोम जमलेन करके थर छिंसी किया होता है। जो गोम जमलेन पूरा दुपसे करके सब सिद्ध करके जब थर छिंसी हो जाता है, विपश्यना पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा मुक्त को प्राप्त कर लिया होता है, उस मुक्ति की अवस्था में कैसे होता है नमलेम पालो, उसके बारे में यहाँ से आपको पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं डा चंपा, खुमलिंग बोलते हैं हमारी भाषा में। डा चंपा कैसे होते हैं? डा क्या होता है? त्वचा चेतांग मुक्ता दो नजर, राग द्वेष ईर्ष्या अज्ञान अहंकार ममकार, उसको खत्म होने के बाद जो अरहत की पोजीशन होता है ना, अरहत, वो कैसा होता है, उनका क्या व्यवहार होता है, इससे आप समझोगे। क्योंकि ये दंपत तो आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये परियत्ति है, ये परायण कर रहे हैं। संगेश का छस का हम लोग कान से सुन करके कैसे होता है छस, उसको हम लोग अपने बुद्धि के सतर पर समझते होते हैं। बुद्धि के सतर पर समझ करके अगर नमलिन करोगे तो बेकार हो जाता है। बुद्धि के सतर पर समझ करके नमलिन करोगे तो उसका फल मिलता है। अभी हम लोग बुद्धि पर समझ रहे हैं, बुद्धि विलास कर रहे हैं। बुद्धि विलास में जरूरी है, नहीं तो कैसा इंफॉर्मेशन पता लगेगा? छस क्या है कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसको पता लगने के लिए थोड़ा छस को सुनना पड़ता है। सुन करके फिर चलोगे ना। रास्ता मालूम ही नहीं तो कोई जानने वाला आदमी से पूछोगे कि रास्ता कैसा है तो बताएगा यहाँ से जाओ जी, वहां से पकठंडी है जी, वहां से जाओ जी, वहां से वहां जाओ जी, फिर वहां पहुंचोगे। सीधा जाओगे तो उल्टा दिशा में जाओगे तो वहां कभी पहुंचोगे नहीं ना। ये रास्ता दिखा रहे हैं, समझ गया ना संगीत। रास्ता में जाकर के जब दाचंबा का गोपांग मिलता है तो वो लोग फिर कहाँ पहुंचे होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। इसको अरहतो वग्गो बोलते हैं, दाचंपाओ खुमलिंग बोलते हैं ना। ये जो है कहाँ पर संगे चुमलिन देश जी ने किया है, ये जो पहले में वैशाली में अमरावती नहीं थी, वो आम के बगीचा में बहुत जी प्रवचन कर रहे थे ना, वहां पर ये इन्होंने
प्रवचन किया है। ये गाथा जो है, गाथा किसको कहता है? संगे चुम्बन का छठ जो चार चार पंक्तियों में होता है उसको गाथा कहते हैं। श्लोक तो संस्कृत का हो ना, गाथा कहते हैं, दंपत की गाथा। जुवा जिची नंगेन ढल थमचे कुंतु नमदल वर छिंगवा थमचे चेपा ला योंसु दंगवा योमाइन बोल रहे हैं। कहते हैं कि जब जो दाचंपा हो जाते हैं, दाचंपा आरत की वो कहते हैं जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, विपश्यना करके मार्ग समाप्त हो गया ना, ओमो बीन शुंग शुंग कौन क्या है? जुआ जिचिंग न्यांगेन, जुआ जिचिंग मतलब जिसका मार्ग समाप्त हो चुका है। न्यांगेन डाल बोलते हैं जो शोक से रहित है, अब रास्ते में जहां जाना था जा चुका है, पहुंच चुका है, मतलब ज्ञान के मार्ग पार कर चुका है। तो पार कर चुका है तो मुक्ति है ना, तो मुक्ति हो गया, इसलिए कहते हैं कि न्यांगेन ढल बोलते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। थमचे कुंतु नमड्रवा, जो कुछ भी संसार का कर्म फल उल्टा सीधा दुख सुख जो संसार में हम लोग फंसते रहते हैं, घूमते रहते हैं, संसार के चक्कर में फंसते रहते हैं, उससे बिल्कुल विमुक्ति को प्राप्त कर चुका होता है। पूरा डोलशी किया, पूरा समाप्त वहां पहुंच चुका होता है, दाचंपा है ना। छिंगवा थमचे चेपा लास, और जितना भी बंधन था वो सब बंधन टूट चुका है। दाचंपा जो होती है ना आराधना, उनका बंधन टूट चुका है। छिंगवा थमचे चेपा ला योंसु दुंगवा योमाइन, इस तरह का जो विपक्षी होता है, जो विपश्यना करके कोमजमन करके पूरा थर छिशन होकर के बिल्कुल दाचंपा हो गया होता है, उसके लिए अच्छी बुरे की भावना ही नहीं है तो मन में, तो बिल्कुल उसके अंदर नम तो होते ही नहीं। कहते हैं उनको कहते हैं कि योंसु दुंगवा योमाइन, चाहे उनको पीटो भी तो पीठ पर उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होगा, पूरा दाचंपा हो चुका है ना। तो कहते हैं कि संगे चुम्बन देश का कभी कभी हम लोग पहले पढ़ते थे तो फिलोसॉफिकल तौर से पढ़ते थे शेटापीर में, तो कहते हैं कि संगे चुम्बन दे एक ऐसे हैं कि उन्हें गाली दो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनको प्रशंसा करे, तोत्पा लगाओ भी तो संगीत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संगीत के अंदर जिम्बा है नहीं, तो तोत्पा का क्या मतलब? संगे चुम्बन देश के अंदर जिम्बा है नहीं है, पकड़ उनको कुछ कोई मुझे अच्छा करे तो मैं नाचूंगा, उस तरह का भावना है ही नहीं है, भावना से हट चुका है। संगे सो हाथ श्यापियामा भारी खुशीली मतन, हाथ गाली है नरमा संगे सो टोकली मां खुशीली मतन, उनको ना गाली परवाह करता है ना कोई प्रशंसा परवाह करता है, संगस है ना। तो कहते हैं कि हम लोग पढ़ते थे पहले, एक तरफ से चंदन का क्या कहते हैं क्रीम लगा करके मालिश जैसा कर रहा हो संगस को, दूसरी तरफ से चाकू निकाल के उनका दूसरा बाजू काट रहा हो, तो उनको ये नम तो नहीं होता कि एक मेरा बाजू काट रहा है, एक मुझे मालिश कर रहा है, नम तो होता ही नहीं। ये संगस का बात है ना, ये दाचंपा का बात है। तो उनके लिए कोई भी वेदनाएं नहीं होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसको मैं बता देता हूँ, जिसका मार्ग खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जो शोक रहित है, विमुक्त हो गया है, जिसने सभी बंधनों को काट लिया है, ऐसे किसी भी प्रकार का दुख परिताप नहीं होगा, क्योंकि वो अरहत्ता को प्राप्त कर चुका है। अरहत किसे कहते हैं इस चैप्टर से आपको सब पता लगे। अरहत मतलब जिसने दुश्मन को मार चुका है। दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन छठ में अपना सेंस है। अपना सेंस कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन है? तोछा शैतान की मुक्त था तो नजर सेंस है। तोछा ज्यादा होगा, जिम्बा ज्यादा होगा तो मरने के बाद अब हिदाक बनेगा ही बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सारा जिंदगी भरा आपने कंजूसी करके बैठा है, जिम्बा करके बैठा है, मरने के बाद तो हिदाक से होगा ना। कोई प्रभु अल्लाह या कोई भगवान थोड़ी हिदाक बनाता है, अपना सेंस हिदा बनाता है। इसीलिए तो संगे चुम्बन दे रंग सेमनी योंसु दुल बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपने मन को खुद ही क्या कहते हैं तुलसी करो, क्योंकि अपना भगवान आप खुद हो। यही तो संगे चुम्बन देश का सबसे बड़ा अमृतवाणी है। मराऊ भगवान मराई, क्योंकि पाप कर रहा हूं कि धर्म कर रहा हूं आपको खुद को पता है। सबसे बड़ा एविडेंस आप हो, सबसे बड़े जज आप हो, तो आपको पता है ना। जो ये अरहत को प्राप्त कर लिया होता है वो तो पूरा मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है अरहत की उपाधि को प्राप्त कर, उपाधि नहीं कह सकता, अरहत्ता को अनुभव से प्राप्त करके वहां पहुंच चुका है, तो उसे गाली करो या प्रशंसा करो तो उसके मन में कभी पीड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, समझ गया ना, अरहत ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छा है, कहानी से सुनना पड़ता है ना, ये 8 कथा बोल के कहानी से सुनना पड़ता है। कहानी क्या है? यहाँ पर एक बार भगवान बुद्ध, कौन? संगे चुम्बन देश
गिरधकूट पर्वत से नीचे आ रहे थे। गिरधकूट को जगो फुम्पोरी कहते हैं। जगो फुम्पोरी आप लोग नहीं गए कभी? बुद्धिस्ट तीर्थ में गए थे आप लोग? मेरे जी लोग गए? जगो फुम्पोरी गए है ना, दुर्जे राजगिरी से ऊपर जगो फुम्पोरी, जहां पर संगे चुम्बिन देश ने शरबची फरल तो छिंपा युम निठी यतोंबा शरब निम्बो इसका प्रवचन किए थे। जगो फुम्पोरी से नीचे आ रहे थे संगे चुम्बिन देश, इसके बारे में आपको तुरंत पता लग जाए। जब आ रहे थे तो उनका अपना ही ममेरा भाई देवदत्त से उनका पंगा था। पहले बताया ना, देवदत्त जो थे उनका ममेरा भाई, उनसे साथ दुश्मनी था। संघर्ष को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना भाई जो ममेरा भाई देवदत्त दुत लेजिन बोलते हैं। जब संघर्ष वहां से आ रहे थे तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ चट्टान को वहां से ढुका दिया था ताकि संघर्ष को मार दूं जान से। बोला था ना पहले, देवदत्त के बारे में बहुत बोला था। फिर वहां से ऊपर लुढ़का दिया तो वो पत्थर नीचे कहीं किसी बड़ा पत्थर से लग करके ओरे परे हो गया, संघर्ष के ऊपर नहीं गया। लेकिन एक छोटा सा पत्थर जाके संघर्ष के पैर में घुस गया। पैर में घुस करके अंदर तक घाव बना दिया, खून बहने लगा। तो उनके साथ जो आनंद जी थे परिचारक, तो आनंद को बहुत थोड़ा सा कपड़ा से बांध दिया। बाद में संगे चुम्बिन देश का एक एमसी थे, एमसी मतलब डॉक्टर एमजी थे, उनका नाम जीवक था, आपने सुना होगा। उनको शौक में सोजित बोलते हैं, अमजीत सोजित जीवक नाम के अमजी जो संगे चुम्बिन देश का भी अपने व्यक्तिगत अमजी थे, वो आए, गाँव को धोया, फिर उसमें पीड़ा किया मतलब संघर्ष के तो पीड़ा नहीं, घाव किया वो मलहम लगाने के लिए। मलहम लगा के पट्टी बांधा उसने ना, जीवक ने पट्टी बांध करके वो चले गए, क्योंकि उस पट्टी को शाम को खोलना था। फिर संघर्ष को छक करके रहते हैं, संगे चुम्बिन दे मैंने आपके यहाँ पट्टी बांधा है, मैं शाम को 2-3 घंटे के बाद आ करके आपके इस गांव के पट्टी को खोल लूंगा। फिर कुछ चले जाते हैं, जीवक चले जाते हैं। बाद में कहीं दूर गया तो कई मरीजों को देखते देखते टाइम चला गया, वक्त हो गया, अंधेरा हो गया। और उन दिनों में राजगृह जलपे खप के चारों ओर गेट होता था, ग्यालगो होता था, वो बंद कर दिया। जब आगे तो बंद हो चुका था, अंदर नहीं आ सकता। संगे चुम्बिन अंदर थे जलपे खप के अंदर। जितना भी जगो फुम्पोरी के पहाड़ियां थे ना, वो सब पूरा शहर जैसा था उस दिनों में, उन दिनों में। तो नहीं आ गए। फिर वो बहुत दुख हो गया अमजी जो, अब क्या होगा, बहुत पीड़ा हो रहा होगा संघर्ष को। वो मलहम बहुत तेज था ना, बहुत पीड़ा हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा संघर्ष। उसके मन में ये सोच के बैठा है बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत पीड़ा होगा, क्या है। फिर पहुंचा नहीं। बाद में गाँव सूख रहा था, कुंगाओं को बोला संघर्ष ने, शायद गाँव सूखा होगा, इसको निकाल दो। ठीक है बस। संघर्ष मुस्कुराते हुए फिर कुंगाओं ने खोल के हो किया। बेचारा वो डॉक्टर जो जीवक जो होता है, उस रात को तो पहुंचा नहीं, कल सुबह आया थोड़ा हाँ मुंह करके आया। तो संघर्ष को छा करके, भगवान आपको घाव तो नहीं, आंसू बहाते हुए, आपको घाव तो नहीं हुआ, कल रात को मैंने पट्टी बांध के गया था, ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान तो अरहत है, कभी उनको घाव में पीड़ा नहीं लगता है। तो ये संदर्भ में संगे चुम्बिन देश को कहाँ पीड़ा होगा, पीड़ा नहीं होता ना। आपको पता है ना, संगे चुम्बिन देश जब 81 साल के थे तो एक जगह में उन्होंने खाना खाया तो उनको दस्त लगा था ना खून का। कहाँ है, और भी छुई दे रहे। एक बुजुर्ग आदमी को बताया था ना पहले, एक सुभद्र नाम के बुजुर्ग आदमी को लास्ट क्षण में भी छोड़ते थे। कुंगाओ कहता है कि मत छोड़ो इसको कुंगाओ मत आओ यहाँ, संघर्ष बहुत पीड़ा में है, अभी परिनिर्वाण को होने 5 मिनट के बाद संगे चुम्बिन दे गोंपा जोशी कर रहे थे। 5 मिनट के बाद संगे चुम्बिन दे शरीर छोड़ने जा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी 80-90 साल का संघर्ष से मेरा दर्शन कर रहा है दरवाजे के पास, संघर्ष का दर्शन मुझे करना है, नहीं मान रहा बिल्कुल। कुंगाव ने कहा, अरे पिताजी आप सुनो, संघर्ष अभी परिनिर्वाण की और कुछ थोड़ा ही क्षण बचा है, कृपा करके इनको आप सुनो मेरी बात, मत आओ यहाँ पर, बस यहाँ से चले जाओ कृपा करके। ये जब जो वार्तालाप हो रहा होता है कुंगाओ और क्या कहते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति का बातचीत हो रहा है, तो संघर्ष अंदर से सुनते हैं तो करुणा का तूफान आ जाता है। संघर्ष के करुणा दया निंजे आ जाता है। संगे चुम्बिन दे गोंपा जोशी करने वाले 5 मिनट के बाद फिर भी कहता है, आनंद रे आने दो, इनको आने दो, क्यों रोक रहे हो, आने दो बोलते हैं। आते हैं संगे चुम्बिन देश, खुद संगे चुम्बिन दे निर्वाण की अवस्था में आता है। फिर वहां बोलता है, पीते उन्होंने देख लिया ना संस्कार है, देख ये दुनिया में कोई संस्कार क्या है, सब संस्कार अनित्य है, सब खत्म होने वाला है, मैं भी छोड़ रहा हूं ना शरीर, इसको सोच। और इसको सोच करके अपने सांस पर ध्यान लगा के अपने शरीर को देख, क्या चीज है अंदर, कुछ भी नहीं है, बुलबुला है, कुछ भी नहीं है, अणु परमाणुओं का संग है, कुछ भी नहीं है। देख अपने मन को देख,
ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बुद्धा जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उनके अंदर एक संस्कार था पूर्व जन्म में, वो समझ लेता है। समझ करके उस बुजुर्ग को कल्याण करके 2-3 मिनट के बाद संन्यास शरीर छोड़ते हैं। संन्यास को कहां पीड़ा होता है। अब हम आप जैसे तो संन्यास तो नहीं है, आप थोड़ा सा नमले तो भी नहीं है, तो मरते समय हम लोग कितना चिल्लाते हैं, कितना छटपटाते हैं, बुलाते हैं। मेरा वहां एक छोटा सा एक बॉक्सा के अंदर वो रखा है, उसको यहाँ रख के दे, और रखेगा उसको तसल्ली से देखे, उस बीच में मर रहा होता है, बाद में उसी में जाके चूहा बनोगे ना। कहाँ क्या सोच रहा है, पता लग रहा है। तो संन्यास तो करुणा का सागर है। निंजे की ज्ञाचो, ईशे की ज्ञाचो, ज्ञान सागर, करुणा निधि तथागत बुद्ध। इस जो मैंने श्लोक पढ़ा था ना, जो अरहत व्यक्ति होता है, अरहत व्यक्ति होते हैं, हमारे दिखाई में दुख हो रहा है, सुख हो रहा है जैसा लगता है, लेकिन उनको सुख दुख का कोई आभास होता ही नहीं है। उनके अंदर तो पूरा करुणा है, पूरा समता के भाव में पहुंच चुका है, सजगता के भाव में पहुंच चुका है ना। हम क्या, हमारे अंदर ना सजगता है, जागरूकता है, ना समता है, तो धर्म कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए तो हमको घूम करना पड़ता है। आजकल जो विपश्यना बोल के चला हुआ ना, बहुत कल्याणकारी मारक है। मैं भी किया कई बार, 6 बार किया मैं पहले। जो गोयनका जी है ना, उन्होंने ऐसा कार्य किया है, सत्यनारायण गोयनका जी। वो गम के बारे में बहु होना बहुत जरूरी है। तो वो अपना बनाया हुआ थोड़ी है, दंपत के आधार पर वो बताते हैं, तो उसमें बहुत संदेश का जिला आ जाता है, समझ गया ना। तो जब मैं किया तो 3 बार तो खुद साक्षात खुद थे ना, खुद साक्षात थे, और रिकॉर्डिंग नहीं था, खुद ही बोल रहे। ऐसा किया हम लोग ने, समझ गया ना। तो ऐसा फिर उसके बाद 3 बार ऐसा। फिर मैं अभी हालत में बर्मा गया था, तो बर्मा में गया तो समझ में आ जाता है यार, देखो संन्यास का चीज। कल परसों गोम्पा में गया था, कुछ लामा जी लोगों से, मेरे मित्रों से बात किया, यार ऐसा है। जब हम मुझे जी मिले, मुझे को बोला मैं ऐसा, इन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है ना। अब ये है तो उम्र के छोटे आशीर्वाद, ये तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। एक इतना जैसा एक पता नहीं सोने का तो नहीं होगा, इतना जैसा एक मूर्ति दे रहे हैं, टेंडर के लिए बोल रहे हैं, आपका जीवन लंबा होना चाहिए बोलते हैं, प्रवचन करते रहो बोल रहे हैं। तो कल मैं उनका था, देखो जानने वाले ऐसा समर्थन देते हैं ना, तो जानना बहुत जरूरी है धर्म को समझना। जानोगे तो यह भावना जो डाचंपा अरहत वाला जो बताया ना, सभी पीड़ा से मुक्त होकर विमुक्ति को चला जाता है। तो उस समय संजय चंदन देश कहते हैं कि तू क्यों चिंता किया रे जीवक, क्यों चिंता किया। भगवान को कभी पीड़ा नहीं होता। उस समय अपने आप को भगवान के कर भी बताए थे, भगवान को कभी पीड़ा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति नहीं तो पीड़ा कहां का। सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं पीड़ा, जो दुख होता है, तुंगल होता है, तुंगल की ग्युति जिम्बा रेवा, तुंगल की ग्युति जिम्बा, जितना जिम्बा करोगे, छप्पा करोगे, इतना दुखी हो जाओगे, है ना। आज संसार में देखिए, हम लोग अपने आप में, अगर आपको अपनी वास्तविकता को देखोगे ना, अपने शरीर को देखोगे, अपने रहन सहन को देखोगे, जैसा है वैसा ही बना रहोगे ना, कभी आप दुखी नहीं होगे। जैसा है वैसा ही बना रहोगे, है ना। आपका मकान जैसा है वैसा ही है जी। मकान का मतलब क्या है जी, बैठना है, सोना है ना, थोड़ा वहां अपने रहने का एक घोंसला है, बस इतना ही है, समझ लिया। तो उस घर में बैठ लिया तो आप सुख शांति से जियोगे। वहां अपने घोंसला को नहीं देख करके दूसरे के घोंसले को देखेंगे, वह कितना सुंदर है, कितना अच्छा खिड़की बनाया, कितना बढ़िया बनाया है, तब तो दुखी हो गए ना। वो आपको मिलने वाला नहीं, फालतू में मन में उल्टा सोच लिया, दुखी हो गया आप। फालतू में सोचा ना, वो तो मिलने वाला नहीं है, क्या सोच के बैठा है। जहां जितना है वैसा ही बन के रहो ना, यथाभूत जैसा है वैसा ही बन के रहो ना, फिर सुख से जियोगे। अच्छा है कि तो उसको खराब करने के चक्कर में होते हैं हम लोग, खराब है तो उसको खराब बनाने के चक्कर में होते हैं। एक बार मैंने वो घोड़े और बच्चों का स्टोरी नहीं बताया था, वो हालत है, समझ गया ना। तो हम जो है ना अपने मन के मालिक खुद हैं। भगवान बुद्ध ने मन का मालिक बनो बोला, शरीर का मालिक मत बनो, मन का मालिक बनो। मन का मालिक बनोगे तो हकीकत पता लग जाएगा। मैं गलत कर रहा हूं तो गलत नहीं करेगा, अच्छा कर रहा हूं तो अच्छा करेगा, और असलियत को पहचानेगा। शरीर नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, क्षण भंगुर है, मर के जाना है। असलियत क्या है दुनिया में? मरना है। मरना असली है कि नकली है? असली है ना। लेकिन हम मरना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? गलत हो गया ना। मरना सीखो, जीते जी।
संन्यास ऐसा बताते हैं, जीते जी मरने सीखोगे ना, फिर किसी का गलत तो करोगे नहीं। अरे यार मुझे मरना है, गलत करके क्या करना है? गलत करके क्या करना है? जाना मरना है ना, गलत करके क्या क्या करना है? एक बार मैंने एक कथा सुनाया था, देखिए इसके बारे में बोलना जरूरी है। कथा तो मैं सीधा पढ़ लूंगा ना, सेपा चुमा, इसलिए मेरे को थोड़ा रुचि आ गया। एक बार दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े सेठ जी थे, सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बंगला है, बिल्डिंग है, गाड़ी है। मतलब पुराने समय में तो गाड़ी वाड़ी तो नहीं होता, जो भी है, रथ है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, क्या है, सोना है, चांदी है, भोजन है, राजमहल है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी मन जो है अशांत। सेम देवो मिदु ते जुचुको सेम ल देवो मिदु सेम ल कितो मिदु, ऐसा एक गल्पो है। सेम में कितो नहीं है ही नहीं है। तो उस भीड़ में वैसे ही सोच के बैठा था, ते तो भारी छुपो क्यों ली तो री ली तो जामुर तुम में होने ली तो बाल बच्चे सब कुछ है, सब जन्मों तक खाए भी तो उसके पास खत्म होने वाला नहीं है, धन दौलत कितना ज्यादा है, फिर भी मन अशांत, कुछ नहीं है जैसा, और भी कुछ नहीं है जैसा, और भी कुछ चाहिए है जैसा। हम अभी सबके मन में ये होता है, समझ गया ना, संसार में कुछ और भी चाहिए जैसा है ना। है तो है, अच्छी बात है, नहीं भी है तो जी तो रहा है ना, ऐसा जीना चाहिए। लेकिन वो बेचारा सेठ आदमी परेशान परेशान, सब कुछ होते हुए भी परेशान। उस भीड़ में एक फकीर आ गया, वो सोच ही रहा था क्या क्या करना चाहिए क्या। एक फकीर आ गया, यह कथा पहले भी बताया था मैंने। फकीर आ गया, फकीर आकर के वो सेठ आदमी या राजा जो भी हो सोच रहा था, तो फकीर आके एक चादर बिछा करके उसके सामने सो गया, लेट गया, सो जाता है। सोता है, बहुत गुस्सा आता है, क्यों आया बिना पूछे, बिना अनुमति से मेरे घर में क्यों आया, कहाँ के हो तुम, मेरे को अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, ये तो आपका भी नहीं है ना। बोला ये तो आपका भी नहीं है, मैंने सोचा ये धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, सोचा अतिथि करने सोचा, इसलिए मैं आया, सो गया। कैसा अतिथि कर, मेरा घर है, निकल जा, लात मारने की कोशिश करता है, गाली देता है, निकल जा, बोलता है नहीं बोलता है। फिर वो हाथ जोड़ के कहता है, वो फकीर जो कहता है, एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सुनोगे? तो वो कहता है कैसे, हाँ बोलो क्या बोलना है। तो आपके पिताजी कहाँ है? बोला तो पिताजी तो गुजर गए हैं, बोलते हैं। पहले कहाँ रहते थे? बोला तो यहाँ रहता था इस घर में, अभी कहाँ है? गुजर गए, नहीं है। फिर उसके बाद आपके दादाजी कहाँ है? वो भी तो गुजर गए, पता आप वो भी तो गुजर, सब गुजर गए ना, गुजर गए, कोई है तो उनका तो रहा नहीं। पिताजी गुजर गए तो पिताजी का घर तो रहा नहीं, दादाजी गुजर गए तो दादाजी का घर, धन संपत्ति, रुपया पैसा उसका वो हुआ नहीं, उसका था पोपो की पोपो किसी का भी वो घर नहीं है ना, सब तो गुजर गया, सब छोड़ के चला गया। फिर आप यहाँ हमेशा बैठोगे क्या? बोला उस फकीर ने, अब यहाँ हमेशा नहीं, मैं भी तो गुजरना। फिर आपका हुआ कैसा है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय उसको होश आ जाता है, ज्ञान मिल जाता है, उस राजा को ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिल जाके वो फकीर कुछ पता नहीं क्या था, अंतर्दान हो जाता है, वहीं गुप्त हो जाता है। तो उसको होश आता है, सही में है, मैं क्यों फालतू में चिंता, सब कुछ है मेरे पास है। उस दिन से वो बहुत बड़ा दानी हो जाता है। फिर किसी एक बंते जी से मुलाकात हो जाता है, विपश्यना सीख लेता है, ऐसा करके वो तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है उस फकीर के द्वारा। समझ गया ना, यहाँ शिक्षा मिल रहा है ना। तो मैं दिमाग लगा रहा था अपने दिमाग से, मैंने देखा यार संज्ञा शक्यत हुआ, संज्ञा शक्यत हुआ कौन थे? शके गल्पे जबला, छक्सा लोग होते हम लोग, क्या बोलते हैं? शके गल्पे जबला। उस शाक्या महाराज के पुत्र सिद्धार्थ को मैं नमस्कार करता हूँ। उस संज्ञा चुंबन जिसका जन्म राजघराने में हुआ था, शाक्या के राजकुल में जिसका जन्म हुआ था, है ना जी, उसको मैं नमस्कार। राजा को नमस्कार कर रहे हो कि बुद्ध को नमस्कार कर रहे हो? किसको नमस्कार? संज्ञा को नमस्कार कर रहे हैं ना, गौतम को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं। बुद्ध कौन है? बुद्ध तो ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान है, करुणा के सागर है, ज्ञान है। वो ज्ञान उन्होंने कैसा हासिल किया? घर पर छोड़ के हासिल किया कि घर को पकड़ के हासिल किया? समझ गया ना, ये कौन थे? वो शाक्य की गल्पों थे। उसी तरह आप झांसी शिवाला जिन्होंने चंजुक बताया पूरा 10 चैप्टर का, जो ये दलाई लामा जी, हमारे भूतपूर्व खुन्नु रिम्पोचे, तेंजिंग ग्याल्सिन जी, जो महान विपश्ची माना चाहिए, वो भी पूरा न्यमलेम्पा थे। तो उन्होंने जो पाठ कहते थे, वो आचार्य शांति देव जी किसके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। दीपंकर श्री आतिश जी जो बंगाल से उत्पन्न होकर के पूरा तिब्बत देश में जाकर के बुद्ध शासन का दीप जलाने का काम किया, वो किसके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। जैन
जो जैन नहीं, जेन बोल के एक होता है, क्या कहते हैं, पहले चाइना में गया, फिर वहां से कोरिया में गया, कोरिया से जापान में पहुंचा हुआ, वो भी विपश्यना है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल का है, डायरेक्ट है ना। वो बोधिधम्मा जी थे। बोधिधम्मा जी कौन थे? भारत के विपश्यना आचार्य जी थे, महायान की दृष्टि से। वो कौन थे? वो कांचीपुर के राजा के तीसरा पुत्र थे। सब कुछ छोड़ करके ऐसा हो गए थे। जो ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे कहने का मतलब यह है। तो मितापा नेमो बारी जरूरी तो संगे सुनमा तो रोसोमल दुआ दे। जितना आपके पास धन दौलत है उसको यूज करो, पहनो। मैं भी तो पहनता हूं ना, मैं भी तो खाता हूं ना, मैं भी तो घूम घाम के आता हूं ना। लेकिन एक बात है कि संगे चौमदेन देश के उससे पता, कल गुरु का दर्शन किया, जो कुछ मैंने कमा के लिया गुरु को दान दिया। गलत किया कि खराब किया बताओ? वहां की 300-400 लामा लोग वहां अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां दान देने में क्या मैंने बुरा किया है? नहीं किया ना। तो ऐसा होना चाहिए ना, जीते जी करे तो फिर ध्यान हो जाता ना। ये तो एक स्थूल हो गया, दान दून देना तो बहुत स्थूल चीज है। सबसे तो अपने मन को पवित्र करके सही में, हालांकि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, मैंने जितना पुण्य कमाया था उसको मैंने ही धो लिया। लेकिन कभी कभी प्रेरणा के लिए बोलना पड़ता है, प्रेरणा के लिए, आप लोग को समझाने के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन करने के बाद बोलना भी जो है संगत के छस में अलाउड नहीं होता है, समझ गया ना। तो इस तरह से ये दाचंबा के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। इसके बाद दूसरे उसमें जाऊंगा, मैं दूसरे श्लोक के गाथा में जाऊंगा। डेंडंग डेंपरा रब्जरवा तेनम नेला छकपा छकमाई नंगबे जिंगबु तोंगवा जिन छिमदंग छिन नी देई धर बोलते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि जो दाचंबा होता है, जो विपश्यना में पूरा मेडिटेशन कंप्लीट करके लाखोंग का जो गम नमलेन करके जो कंप्लीट होकर के दाचंबा हो गए होते हैं, तो दाचंबा का कैसा होता है, उनका विचार कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, खासकर विचार पर आता है बात। संन्यास का छस जो है विचार पर आधारित है। विचार शुद्ध होना पड़ता है संन्यास का छस में। विचार शुद्ध ना हो तो आप जितना भी ढोंग रचाओ उसमें फल नहीं मिलेगा। ढोंग तो क्या कहें, मतलब कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है ना, नहीं तो फिर पता नहीं लगता है लोगों को। तो विचार बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, मन साफ सुथरा और निर्मल होना चाहिए। जब पूरी तरह से निर्मल हो जाता है तो अरहत हो जाता है। तो अरहत की अवस्था किस तरह से होता है उसको यहाँ समझना है। यहाँ अगले वाला चैप्टर फिर प्रेरणा ज्यादा मिलेगा। ये तो एक पूरा हाई में जा रहा है ना, जो सिद्ध कर चुका है उनका हाव भाव कैसा होता है। तो कहते हैं डेनमन डेम्परा रब्जर वहाब होता है, हमेशा सजगता और स्मृतिमान होते हैं। हमेशा जागरूक रहते हैं, सजगता में रहते हैं, हमेशा जागे रहते हैं। हम लोग तो सोते हैं ना, अभी सुनते सुनते भी सो रहे होते हैं। कभी कभी सुनाई दे रहा है जैसा, कभी नहीं सुनाई देते रहे, पीठ में सो रहा होता है। तो इसलिए सोने का मतलब ऐसा ही सोना नहीं है। जब मन भटक गया तो वो भी सोने की तरह हो गया, ध्यान में, समझ गया ना। जो जिसके अंदर जो स्मृतिमान होते हैं, मतलब ध्यान में जो विपश्यना में रत होते हैं। अब मैं बार बार विपश्यना बोल रहा हूँ। विपश्यना का मतलब होता है लाक्थोंग, लाकप्रा थोंगवा बोलते हैं उसमें। लाक्थोंग क्या है? विशेषेण पश्यति इति विपश्यना बोलते हैं, विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से क्या देखना? जो असलियत है उसको देखना। हम तो विशेष रूप से देखते नहीं ना। अपने घर को देखेंगे, उसके प्रति राग पैदा करेंगे, अपने दुश्मन के प्रति देंगे, उसके प्रति द्वेष पैदा करेंगे, राग रंजित हो जाएंगे, द्वेष दूषित हो जाएंगे, मोह मोहित हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं जानता, फिर मैं बड़ा वो छोटा, ऐसा करके मैं मेरा उस प्रपंच में फंस करके हम लोग त्वचा वाला हो जाते हैं, शतंग वाला हो जाते हैं, तिमुख कुछ भी नहीं जानने वाला ऐसा हो जाते हैं, अंधेरे में भटकते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दाचंबा होता है वो हमेशा स्मृतिमान होते हैं, विपश्यना में पके होते हैं। असली क्या है उसको जानते हैं। असली क्या है बताओ? हमारा शरीर अनित्य है, तो अनित्य को जानोगे तो असली वो विपश्यना हो जाता है। जानने को तो कान से सुनकर भी अपने ब्रेन में रख करके, अपने लतवा में रख करके, हाँ यार मितक पाए हमको पता है, मुंह से बोलते हैं ना हम लोग, वो थोड़ी आप जान रहे हो। वो तो आपका वाक पटुता है, मुंह से बोलने का आदत है, बुद्धि में डाल करके झूठ बोल रहे हो ना। आपको पता नहीं है, पता लगा जैसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। विपश्यना का मतलब है शरीर अनित्य है। ध्यान मितकपा निमा मितकपा रिमो शीतली नेने। अगर शरीर अनित्य है
शरीर जो मितकपा है असली में जानोगे तो आपका व्यवहार बहुत परिवर्तन होगा ना। कई लोग मुंह से बोलते हैं जानते हैं सब अनित्य है, सब तोंगबानी है, वो है, आप मजा ले रहे हो ना। जैसा आमतौर पर गप्पे मारे होता है, गप्पा थोड़ी होता है धर्म। धर्म को तो धारण करना पड़ता है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे तो प्रभात है, वरना अंधेरी रात। गुरु महाराज जी का दोहा वगैरह में ऐसा होता है, समझ गए ना। दुआ हो चाहे बिलारे पाची हो, जो भी जो पक चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं ना, सबका एक ही सिद्धांत होता है। तो मितकपा है बोलते कि हमको समझना चाहिए ना, समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। जानोगे ना तब विपश्यना पता लग जाता है। फिर विशेषेण पश्यति, अब विशेष रूप से देख लिया, शरीर को देख लिया जाए, शरीर को पूरा देख लिया। त्याग में क्या है, कुछ भी नहीं है। मोटा मोटा सी देख लिया तो शरीर को क्या देख लिया, जो हड्डी और मांस का लोथड़ा है वो तो मिट्टी है, इसलिए मरते समय लाश चला जाता तो मिट्टी बन जाता ना, है कि नहीं है, मिट्टी है। हमारा हड्डी और मांस क्या है, मिट्टी है। जो हमारे अंदर जो रक्त बहता है तरल पदार्थ, वो पानी का अंश है, इसलिए बह रहा है। हमारे अंदर जो सांसें चल रही है ये क्या है, वायु है, हवा है। हमारे अंदर जो हीटिंग सिस्टम है, अंदर से जो गरम गरम है, ये आग है। साछू मैं लूंग बोल के नमशे यही है ना, इसीलिए तो मरते समय थिम्ब्रिम बोल के सब एक में एक विलीन होकर के बाद में पार्थिव शरीर काम नहीं करता है ना। तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, सिर्फ मान के बैठे हुए। जानेगा तो आदमी गलत कार्य करेगा ही नहीं ना, तो नहीं जान रहा ना। तो उसको असली तरह जानोगे तो गम जमरिन करके शरीर को देखोगे, सिर कहाँ है, सिर मिलेगा ही नहीं। ढूंढते जाओगे तो ठोस सिर मिलेगा नहीं। जिसे हथौड़ा नहीं तोड़ सकता है, जिसे डंडा नहीं फोड़ सकता है, इस तरह का सिर तो है ही नहीं है। इसको तो थोड़ा चोट लगे तो खून बहना शुरू हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो गम करके सिर ढूंढोगे तो सिर मिलेगा ही नहीं, चेहरा ढूंढोगे तो चेहरा मिलेगा ही नहीं, है ना। गला ढूंढोगे तो गला मिलेगा ही नहीं, छाती ढूंढोगे तो छाती मिलेगा ही नहीं। कम जिद लुई लतार कुछ भी नहीं मिलता है। कैसा देखोगे ना, सिर का सिर देखोगे तो सिर के अंदर चमड़ा है, चमड़ा देखोगे तो अंदर क्या है, लेपा है, लेपा के अंदर देखो तो क्या है, क्या है, क्या है, बाद में जीरो में आ जाता है, कुछ मिलता है। बुलबुले ही बुलबुले, बुलबुले ही बुलबुले, कुछ तरंग ही तरंग, जैसा पहले मकड़ी की जला की तरह दिखाई देता है। हमको अनुभव है ना, हम लोग मेडिटेशन करके बोलते हैं। छेपा होने के नाते थोड़ा ये गहरा है, तमडेल होने से मैं बता रहा हूँ संगीत का चौस। अब क्या है, सिर पूरा मकड़ी की जाला की तरह दिखाई देगा। मेडिटेशन ज्यादा करोगे तो वो जाला भी हट जाएगा, बाद में तरंग ही तरंग, वो तरंग भी खत्म होकर के कुछ भी नहीं, खाली आकाश। उसी तरह ही गला, उसी तरह कान, नाक, छाती नीचे 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 हो। इसलिए संगत कहते हैं कि सब संखारा अनिच्चाति यदा पंजाय पश्यति अत निबंधति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया बोलते हैं। कहते हैं कि ये संस्कार पूरा सब अनित्य है, मितकपा है, सब खत्म होने वाला है, एक भी नहीं रहने वाला है। जब प्रज्ञा के चक्षु से मेडिटेशन करके अंदर जांच करके पूरा देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब अनित्य है बोलता है, मितकपा है बोलता है ही नहीं है वो कुछ। जब वो पता लगता है ही नहीं है कुछ हो तो शरीर का जिम्बा हट जाएगा। जब शरीर का जिम्बा हट जाएगा तो दुख कहां से आएगा। अथ निबंधति दुखे ऐसे मग्गो, यह विशुद्धि मार्ग है। इस मार्ग पर चलोगे तो अब पूरा शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। खुद को पता लगाना है ना। बाहर जाके मूर्ति के ऊपर जितना भी छाती पेटो, जितना भी सिर का वहां पर छक करो तो वहां से ये ज्ञान नहीं मिलता है। छक करने का अपना फायदा होता है, मोटा मोटा इससे कैप्टो लगाने का अपना फायदा होता है मोटे, लेकिन असली तो खुद को जान के दिखाना। आप हो कौन हो, चाहे राजा का सिर हो, चाहे प्रधानमंत्री का सिर हो, चाहे पीएम का सिर हो, चाहे गरीब का सिर हो, राजा रंग फकीर सबका सिर हो, सबका सिर एक ही तरह है। नस से बांधा हुआ एक हड्डी का एक क्या कहते हैं खोपड़ो ऐसा छुपाया हुआ, अंदर खोलेगा तो लत्ता, कुछ भी नहीं, सबका एक जैसा होगा। कुदरत का कानून है, विश्व का विद्वान है, ये कुदरत का कानून है। तो क्या विशेषता है। समझे चुमलिंग देश, उनका शरीर भी हमारे शरीर की तरह है, जो उनका शरीर बोल रहा हूं, लेकिन वो तो बुद्ध है ना, वो तो ज्ञान है, लेकिन हम नमतो है। संज्ञा ज्ञान है, हम नमतोक है। जब नमतो हट जाएगा तो ज्ञान में हम खुद ही संज्ञा हो जाएंगे। ये संज्ञा ने बताया है, समझ गया ना। ये जानना बहुत जरूरी है, हम लोग को पता है ना। सबको समझ नहीं आएगा एकदम, लेकिन ये जाने तो जाने, थोड़ा बहुत बुद्धि विलास से भी जाने। असली जानना अनुभूति पर कौम नमन करके जानोगे,
है ना। ये जानोगे तो मन साफ सुथरा होगा, तो फिर सब कार्य पूरा राइट दिशा में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा। राइट दिशा मतलब छोक जंगोला, हम लोग जिंगम बोलते हैं, भोपाल में का जिंगम क्या जिंगम है कि नहीं, हमारे मन पर निर्भर करता है। मन साफ सुथरा है, पवित्र हो तो सिंगम दिखाई दे सकता है। मन ही अशुद्ध हो, गंदा हो तो क्या सिंगम दिखाई देगा? देगा नहीं, दिखाई देता है। तो सिम नंगोला कौनचोला देपा तो वह सिमचेन थमचेला मिंजे छोटो चमचेला धमसिक पे गेचम बोएंगे सुनली। संगीत के प्रति धप्पा धप्पा चुमा माइंबा, ऐसा ही नहीं मेरे को तो उस रिम्बचे को बहुत धप्पा दी, उसको तो मैं नहीं मानता ना, कल दिया ना गलत फालतू में बात कह दिया ना, क्यों किया ना? ठीक है, उस रिम्बचे के प्रति चुप रहो ना, धप्पा रखो बस, ठीक है। मेरे को तो वो रिम्बचे बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि उसका रहन सहन अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगने से क्या है, तुम तो खराब हो ना, आपको तो पता लग रहा ना। अच्छा ये जानो यार, कृपा करके जानो, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं कहाँ पहुंचू, आप कहाँ पहुंचो, है ना। सच्चू मेला है, समझ गया ना। मेला में भी कुछ मिलता है आनंदित, लेकिन मेला मेला है। लामा जी आएंगे, दर्शन हो जाएगा, मेला जैसा है। लेकिन उस मेला को मैं खराब नहीं कहता है, वो एक संस्कृति, एक परंपरा है, अच्छा है। गुरु जी हैं, लोग मने का जप कर रहे हैं, पजरा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है, उसका हम निंदा नहीं करते हैं। लेकिन असली धर्म को जानना होगा तो खुद को अंदर देख कर जानना पड़ेगा। सोसो की तार संगीत चंदन देगी दानी दागी गोन निंते डाली जिम्बे सुगोन हिंस सिम धुलवानी लेखबाते सिम धुलवीनी थोड़ी थोब। अपने आप हम खुद के मालिक हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ बोलते हैं, हम खुद के मालिक हैं। जब आप ये सब पहचानोगे ना, अपने मन की जो मलिकियत है ना, उस मलिकियत के मालिक आप खुद हो, उसको सुधारना पड़ता है। लामा रिम्पोचे सबका दर्शन करने से कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन करना चाहिए। गुरु का दर्शन से प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। जो बता रहे हैं उस पर तो चलो ना, नहीं चलोगे तो फिर तो अपने को धोखा देना नहीं है। अपने बुद्धि की क्षमता के अनुसार नी थंगमाला, जितना भी हम लोग आदमी हैं, जितना भी हम व्यक्ति है ना, अपना अपना एक स्वयं के अंदर एक भक्षक होता है, संस्कार बोलते हैं, अपना अपना योग्यता होता है, अपना अपना क्षमता होता है। उस क्षमता के अनुसार कम ज्यादा तो सबको धर्म समझना चाहिए ना। अब समझोगे नहीं, अब थोड़ा सा जान लिया, ढींग मारना शुरू कर दिया, उल्टा किया उल्टा किया, वो जा करके खुद को ही घाटा मिलता है। छुई की नमलिंग जो करते हैं ना, वो शांत होकर के करते जाओ, बस करते जाओ। आनंद आ रहा तो उसको पकड़ो नहीं, आगे बहुत रास्ता है। ऐसे जगह पर पहुंच सकते हैं आप जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम गप्पे में कहां ला सकते हैं? गप्पे का तो सीमित है, वो लिमिटेशन है, उसमें आप असलियत को कहां ला सकते हैं? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ पर बुजुर्ग है, मामा जी हैं, सब लोग है ना। अब ज्यादा खोरवा में जिम्बा मत करना, कोई फायदा नहीं है ना। जिम्बा करना, खाना चाहिए, पीना चाहिए, बैठना चाहिए, बात अच्छा करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जिम्बा नहीं करना चाहिए। बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं ना, यहाँ मैं क्यों ये प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ खासकर ज्यादा लोग बुजुर्ग के होते हैं, हमारे बोधिचित्ता फाउंडेशन में आते हैं ना बुजुर्ग लोग। तब हमसे छू की ढलवर हो सकता है पहले जन्म से हमारा संबंध हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मिलते हैं। मैं भी जब बाहर देश में होता हूँ तो आप लोग को मिस करता हूँ। सेपा चौमा के दिन पुण्य करना सीखना चाहिए। वैसे तो हमेशा है, यहाँ इसको एक कथा से सुनो। जैसा कि जो अरहत को प्राप्त कर लेता है तो समृद्धवान होता है, विपश्यना में पके होते हैं, उस तरह का जो पका हुआ नमलिनपा होता है, उसके लिए संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक झील है, बहुत साफ सुथरा एक झील है। उस झील में राजहंस रहते हैं, हंस तैर रहे हैं। जैसे उस साफ सुथरे झील को भी हंस छोड़ करके उड़कर चला जाता है, तो नमलिनपा लोग भी संसार में जितना वो करते हैं ना, संसार के प्रति आसक्त में, जैसा राजहंस पवित्र और पुण्य झील के अंदर
वहां पर बैठ करके बिना आसक्ति के उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही न्यमलेम्पा लोग भी अपने न्यमलेम के द्वारा संसार से बिल्कुल उड़कर ऊपर उठते हैं। लेकिन संसार के कल्याण के लिए वो संसार का क्या करते हैं, संसारिक प्राणियों को हेल्प करते रहते हैं, सहायता कर लेते हैं। तो इसलिए जिम्बा नहीं होता है। डाचंबा का मतलब नहीं जानता ना, हम लोग खाली पढ़ते होते हैं, चुमदेंदे दिशेशबा डाचंबा वो क्या बोलते हैं ना। संगीत चुमदेंदे इसको कुछ नहीं चाहिए। संगीत चुमदेंदे इसको हमारा प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हमारा अपना प्रॉब्लम है। जानते हो आप लोग, हम लोग का प्रॉब्लम है। क्यों? हम लोग खरवा दुंगल की गैसों के अंदर है। संगीत तो मुक्त हो चुका है ना, संगीत हो चुका है ना। संगीत को अच्छा कहो बुरा कहो तो आपका अपना कर्म है। संगीत तो कर्म से मुक्त हो चुका है, जाचंबा तो कर्म से मुक्त हो चुका है। जो कर्म से मुक्त हो चुका है वहां कर्म का क्या बात है, ये हमारा प्रॉब्लम है। फिर हम लोग कभी सोचते हैं यार वो वहां जाना चाहिए, कभी जल्दी जल्दी होता है कहीं संगीत का मूर्ति देख, यहाँ रोकना चाहिए। हम लोग बोलते हैं संगीत को नहीं करेगा तो फिर संगीत कुछ सोचेंगे तो नहीं। हमारा दिमाग है ना उल्टा पुल्टा, संगीत कुछ सोचेंगे तो नहीं, तो नहीं किया था यार, करना चाहिए था। किसका प्रॉब्लम है? सब हमारे मन का अपना प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए डाचंबा का मतलब होता है जिसने दुश्मन को हरा दिया हो, जिसने दुश्मन को खत्म कर दिया हो। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हमारा मन होता है? कोई देखो इसको उदाहरण से समझ लो। दो आदमी झगड़ा करता है, एक बोलता है कि यह है वो, दूसरा दो बोलता है, तीसरा तीन बोलता है। फिर वहां से बाद में हाथ उठता है, गोली चलती है, पत्थर उठाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर जब गाली मारते समय एक आदमी अगर विपश्यना का पका हुआ साधक होता है ना, वो गाली पर ध्यान देगा ही नहीं, वो अपने सांस पर ध्यान देगा। गाली तो बुलबुला है, उठ गया चला गया, उठ गया, गाली पर ध्यान देगा ही नहीं। दो एक गाली देगा ध्यान नहीं देगा, दो गाली देगा ध्यान नहीं देगा, तीसरा गाली ध्यान नहीं देगा, फिर वो अपने आप ही चुप हो जाएगा ना। समझ गए हो? हम करते क्या है, एक ने गाली दिया तो हमने गाली दिया, दूसरा ने, तीसरा ने, फिर जिंदगी भर मैं तो उससे बात नहीं करता हूँ क्योंकि उससे साथ तो मेरा पंगा है। कौन सच है कौन गलत है वो तो बहुत दूर की बात है, बस बात नहीं करते हैं जी, जिंदगी भर बात नहीं करते हैं। भाई भाई में बात नहीं करेगा, सास बहू में बात नहीं करेगा, यानी पति पत्नी में बात नहीं करेगा। लेकिन संगीत के चश्मे ये सब बेकार की चीजें हैं, जो आपको ज्यादा ही दुखी बनाता है, ज्यादा ही आपको जो है दुमल में ले जाता है। बात करने ना करने से या तो आप सुखी होता हो, ज्यादा ही दुखी होता है ना। समझ गया? बहुत अजीब लगता है। विडंबना है, विडंबना बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इस तरह से वो करना चाहिए। देखिए एक बार पहले भिक्षु में भी चलता था, ये जो असली डाचंबा होता है उनके अंदर सजगता होता है, जागरूकता होता है, समृद्धिमान होता है, विपश्यना में पके होते हैं। इस तरह से जो विपश्यना असलियत को जानता है, जो अनित्य है, अनित्य को अनित्य जानता है, अनिच्चावत संखारा, पता लग गया सब अनित्य मिथक का पता लग रहा है, अनुभूति से पता लगता है। मेरा शरीर ही मैं नहीं हूं तो अरे दूसरों से झगड़ा करके, जब मैं ही नहीं हूं तो क्यों मैं लड़ाई झगड़ा में फंस रहा, ऐसा पता लग जाता है ना। फिर मिथक का पता लग गया, वो भी मिथक का, मैं भी फालतू में क्यों, वो बेचारा अनजाने में जाना नहीं, मैं तो पता लग रहा है ना, संगीत की झिलक से पता लगा तो मुझे चुप रहना है, मुझे बर्दाश्त करना है, पता लग जाएगा। कई झंझटों से अब दूर हो जाएगा। किसका कृपा है? संगीत चंदन देश के अमृत वाणी का कृपा है। उस अमृत को आपने पी लिया तो झगड़ा से मुक्त हो गए। समझ गया ना? लेकिन हम लोग ये करते नहीं है, विपश्यना ये सिखाता है। तो जो विपक्षी होते हैं, जो गोम जमने से थर्शिशी के डाचंबा होते हैं, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक बार राजगृह में एक गोम्बा के अंदर, बिहार के अंदर तथागत बुद्ध के साथ 500 गेलोंग लोग बैठते थे। गेलोंग लोग बैठ करके वहां पर जितना प्रोग्राम था विपश्यना करने का, साधना करने का, परियत्ति प्रतिवेदन प्रतिपत्ति का जो कार्य था वो समाप्त हो चुका। समाप्त होने के बाद वहां से कहीं संगीत को कहीं जाने थे, पधारने थे, तो उन्होंने बताया कि सब चलो मेरे साथ जाना है। फिर बाद में संगीत को पता लगता है कि यहाँ तो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा सुबह शाम ध्यान करते हैं, धर्म के प्रवचन को सुनते हैं। एक अनुभवी क्या कहते हैं, बनते को यहाँ रखना पड़ेगा। बनते मतलब ढाबा को, भिक्षु को। फिर संगीत ने सोचा कि महाकश्यप जो हसुम चंपा थे, तो उनको बताया कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तुम्हारा जान पहचान भी बहुत है, यहाँ है वहाँ है। फिर वो भी वैसे अपने बोरी बिस्तर लपेट के जाने वाले थे। दूसरा भिक्षु लोग होता है ना, भिक्षु में भी देखो महाकश्यप
भी जाना चाहता है, ये कैसा जाएगा, नहीं जा सकता है, ये तो यहीं बैठेगा, पक्का नहीं जाएगा। बोलते हैं ना, भिक्षु में भी होता है, कोई पक्के भिक्षु होते हैं, कोई अध पक्के होते हैं, कोई साधना नहीं करने वाले थे, कोई साधना करने, हर कहीं होता है। तो ऐसा बोले। बाद में संगत में बताया कि माँ कश्यप को आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, आपके साथ कुछ भिक्षु भी यहाँ बैठ करके धर्म का प्रयाण करके विपश्यना करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। फिर होसुम शंभो माँ कश्यप जी नमस्कार करके भगवान बुद्ध जी को चरण को स्पर्श कर ठीक है तथागत बुद्ध बोल के बैठ जाते हैं। फिर बाद में जो भिक्षु लोग गप मारे थे, उन्होंने देखो, मैंने बताया ना, ये नहीं जाएगा, यही बैठेगा, बेटा जैसा बोल रहा है, इतना बड़ा आराध उसमें भी होता है ना लेवल, बोल रहे हैं। तो फिर वो चर्चा चला गया। चलने के बाद भगवान बुद्ध के बाद शिकायत आ जाता है। फिर बुद्ध जी के पास शिकायत आता है तो बोलते हैं, सबको इकट्ठा करके बोलते हैं, देखो तुम लोग अध पके लोग हैं, तुम्हें ध्यान का कोई पता नहीं है। जो महाकश्यप जो है, मेरा भिक्षु में सबसे तेज जो भिक्षु है, इसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, ये तो चाचंबा है, ये तो आराध है, इसके अंदर जिम्बा नहीं है। लेकिन मैंने ही इनको यहाँ बैठने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों के साथ किसी के साथ आसक्ति है, यहाँ भोजन अच्छा मिलता है, यहाँ चीवर अच्छा मिलता है, इसलिए बैठा नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर वहां तथागत बुद्ध जी कहते हैं, जो विपश्यना में पके वाले होते हैं, जो कम यमलिन में पके लोग होते हैं, यमलिन खर्चिंग किए होते हैं, उनका मन जो है हमेशा स्मृतिमान होता है, हमेशा असलियत क्या है उसके ऊपर निरंतर प्रवाह वाला होती है। विपश्यना में पके होते हैं, जिम्बा नहीं होता है, छप्पा नहीं होता है, शरण नहीं होता है, ना उसमें द्वेष होता है, राग होता है, अज्ञान होता है, कुछ निर्मल होता है। जैसे कि स्वच्छ क्या कहते हैं, झील को छोड़ने वाले राजहंस की भांति माँ कश्यप ने भी सभी आसक्ति को खत्म करके केवल अरहत्ता की जो ज्ञान है उस ज्ञान में विलीन रहता है। आप लोग गलत कह रहे हो कि उस संदर्भ में ये गाथा कहा था।